Hello friends, today we are going to begin a new chapter in your maths part 1, that is complex numbers. Now students, let's first discuss and understand what is this topic complex number is all about. So very first, I would like to take one example through which you can understand that how this theory of complex number is derived. Very first, students, I am writing one particular equation and please try to solve this equation and tell me what should be the answer. So, if I have equation as x square plus 1 is equals to 0. This is a very basic quadratic type equation, quadratic equation. So, to solve this means to find out the value of x, this will be x square is equals to minus 1. And so as x will be under root minus 1. Now student, here is the trouble comes that रूट के अंदर नेगेटिव टर्म जो आया है, हम इसका स्क्वायर रूट क्या निकाल सकते हैं? रूट के अंदर समझो 1 आया होता है तो हम लोग समझ सकते हैं आंसर सर 1 होता है. We can understand that. But this particular under root minus 1 is coming. So minus टर्म का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. In other situation, same thing if they are asking like this, and if I find out the solution of this, and if I find the square root of this minus 4, where I can have partly, that means I can write this minus 1 into 4 and जो 4 है उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा स्टूडेंट्स, बट माइनस 1 अंदर रूट के ही रहेगा. What does it mean? Still I am not finding the value of root minus 1 because the root minus 1 रूट के अंदर नेगेटिव टर्म cannot be defined, cannot be found, and therefore the question now comes that then how to go further and find the value of this under root minus 1. And here the concept comes that this particular under root negative, that is minus 1, is a kind of imaginary term. It's kind of imaginary term. And this particular minus 1 under root, we call it as imaginary number. We call it as imaginary number. And therefore, now we have to understand, now onwards, this type of imaginary number, whenever we come across under root minus 1, that is our imaginary number. Specifically, now, under this theory, we need to have some notations. Suppose if this under root minus 1 it is coming, then this particular under root minus 1 can be written as I, and here the specific notation we are using as I, but we call it as iota. What is the notation, students? Iota.
though it is in English letter we are writing I, but we used to call it as iota. So iota का यहाँ जो जनरेशन हुआ है as an imaginary number, how it came, मैंने ये एग्जाम्पल जो दोनों लिए आपके सामने स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. In this particular example, let's understand again that whenever you come across under root minus 1, such solution for x which further cannot be obtained, and hence it is not possible to find out which is our imaginary number. देखो स्टूडेंट्स, ये जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है वो हम निकाल लेते हैं, लेकिन जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, जिस तरह से ये माइनस टर्म का स्क्वायर रूट यहाँ आपके सामने दिख रहा है, यहाँ देखो जैसे 4 था तो 4 का स्क्वायर रूट निकल गया, बट उसके साथ जो माइनस है दैट माइनस रिमेन्स अंडर स्क्वायर रूट itself. So there was no possibility as such to get the square root of minus 1, and from that part we have derived one concept of imaginary term. So students, this imaginary term, now we are using a letter I, iota we call it, and this I now has some role further. For instance, यहाँ पे हम I का मीनिंग लेंगे iota as root minus 1. यहाँ से हम इसके बेसिस पे कुछ और इंटरप्रिटेशन लेते हैं. Be careful about the next understanding. So this particular conclusion, I, that is iota, is equals to root minus 1. Till this much we have seen. ये जो example के through हमने देखा, this comes our iota, imaginary number. Now if I do squaring on both sides, यहाँ मैं both sides इसका squaring करता हूँ, so I am going to get I square is equals to 1, negative 1. I square is equals to negative 1. जब भी मैं कोई स्क्वायर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करता हूं, if I want to represent like this, minus 1 का स्क्वायर, squaring, that is squaring both sides. तो I स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस 1 जो रूट में है उसका होल स्क्वायर हो गया. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट. So I square is going to be minus 1. This is one more interpretation we got. Earlier we got this conclusion, and now after doing it square, we are reaching to this particular conclusion. So I square we got as minus 1. Now certain points, important points, as a note, specifically we are writing it. Number 1, what is our interpretation from this much of discussion, that now this particular I square, what we have concluded as minus 1, and before that I we have derived as imaginary number as iota, that is a square root of minus 1. This particular imaginary number, when we represent with any real number, so mention this way, any real number written with iota, that is I, that is iota b. देखो कैसे लिखा स्टूडेंट मैंने. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसके बेसिस पे मैं थोड़ा और कुछ डिस्कशन सामने रख रहा हूं. एनी रियल नंबर, सी आई तो हमारा आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है. आई इज इमेजिनरी नंबर जो अंडर रूट माइनस 1 है.
that I imaginary number, when you write along with any real number, तो किस तरह से दिखेगा? I b is real number, b is any real number. ठीक है, तो ये जो आई बी हम लिख रहे हैं, आयोटा बी, which we call it as imaginary number. स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे इसको हम? इमेजिनरी नंबर. किसको? पूरे आई बी को. ध्यान से समझना इसको. सिर्फ आई इमेजिनरी नंबर, आई के साथ यहां मैंने एक मल्टीप्लीकेशन में बी एज अ रियल नंबर को साथ में लिखा है. दैट मीन्स इट बिकम्स आई बी. जो बी जो है वो कोई भी एक रियल नंबर होगा, और ये पूरा का पूरा आई बी जिसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर. पूरा का पूरा आई बी जो है उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर. एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा लिख सकते हैं 5i, 6i, only I, that means that belongs to one I, etc. Second thing along with this, if I specify as a important note, that combination of real number, let's say A, with imaginary number, that is IB, as we earlier understood that imaginary number IB, iota B, that is A plus iota B is known as complex number. Is known as complex number, where रियल नंबर क्या क्या था इसमें? रियल नंबर ए है, लेकिन आई के साथ जब हमने ये बी लिखा है ना, तो भी यहां पे भी मैंने लिख के रखा है, देखो ये भी तो रियल नंबर है. सो हियर व्हाट clarification we want to represent, that A as well as B both are representing to real number. Students, फर्स्ट नोट में आई बी जो लिखा, आई के साथ बी मल्टीप्लीकेशन में लिखा, दैट बी एनी रियल नंबर, आई सेड आयोटा के साथ लिख रहे हैं, तो बी इज अ अलोन बी, अकेला बी इज अ रियल नंबर. एंड हियर in the second note I have represented that in the combination in the sense in addition or subtraction, if I write a plus bi या a plus iota b, I पहले बोलो या बाद में बोलो, see this is a plus bi मैंने लिखा है, somebody can say a plus ib, so a plus ib बोलो या a plus bi बोलो, some may say x plus iy, और मे बी दे कैन राइट x प्लस वाई आई. आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये सभी का मतलब तो सेम ही हुआ ना. some may use a b as a real number, some may use x y as a real number. That is only for representing purpose they are using that, but meaningful it is same. So again come to the second point what we are discussing. So
all together. Now there is a and b, which is our real number, so this belongs to real number. And also we can say that if you speak about only a, चलो मुझे बताइए सिर्फ a को आप क्या इंटरप्रेट करते हो? तो क्या रियल पार्ट, हम क्या बोलेंगे? रियल पार्ट. और b को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इमेजिनरी पार्ट. सो a और b का स्पेसिफिकेशन आपके नक्की हो गया. क्या बोलेंगे इसको? a को क्या बोलेंगे हम? रियल पार्ट. b को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट. अब ये बात कंक्लूड कर लीजिए कि जिस रियल नंबर को आप आयोटा के साथ लिख रहे हो, जिस रियल नंबर को आप आयोटा के साथ लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट. सो b जिसको हमने आयोटा के साथ लिखा है स्टूडेंट्स a प्लस ib में, so that b becomes imaginary part. a जो है वो सिंपली रियल नंबर है, a के साथ i नहीं है, देख लो, तो a अकेला रियल नंबर कहलाएगा. so that a is real part, b is imaginary part, b is imaginary part. और कंप्लीटली ib को आप बोलेंगे क्या? ऊपर फर्स्ट नोट पे आइए वापस से. ib पूरा का पूरा ib को क्या बोलेंगे आप? तो रियल नंबर के साथ जो i लिखा है ना, b जो है रियल नंबर. देखो मैंने अलग से बताया, रियल नंबर किसको बताया मैंने? सिर्फ b को. लेकिन ये पूरा का पूरा ib है ना, ये मैंने हाईलाइट किया है और इसको मैंने एरो मार के बताया. दिस कंप्लीट ib इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. और उस इमेजिनरी नंबर में b जो है उसको हम बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इमेजिनरी पार्ट. तो स्टूडेंट इस पे से अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे? यहां मैंने लास्ट में कंक्लूड तो किया व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बट नाउ आई एम गोइंग फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ definition. That means a number of the form a plus ib, that you can say iota b, is called a complex number. Is called complex number, where a and b both are real number. So both belongs to real number, and iota is defined as -1 as earlier. हमने स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन से डायरेक्टली समझना उससे बेटर था कि ये मुझे एग्जांपल में ये आयोटा आया कैसे, इमेजिनरी नंबर आया कैसे, ये पहले आपके ध्यान में आना जरूरी है. तो ये जो दोनों एग्जांपल हमने देखा, दिस एंड दिस, उससे आपको पता चल रहा है कि रूट के अंदर -1 आया किस तरह से. एंड फ्रॉम दैट वी हैव डिफाइंड दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन. आपने उसमें a क्या है, b क्या है. हाँ, कुछ लोग x प्लस आई वाई के फॉर्मेट, ये मैंने जो पूरा लिखा है ना यहाँ पे, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना. मे बी यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. मतलब कि अलग अलग स्टाइल से लिखने का जो मतलब तरीका है, बट द मीनिंग विच दे रिप्रेजेंट दिस सेम. और एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, complex number is represented by z, represent by z. ये एक हमारे लिए अल्फाबेट है जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं.
तो फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको लिख के दिया, एग्जाम्पल देखो z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई या ए प्लस आई बी आयोटा बी, ये तो जनरल फॉर्म हो गया है ना, बट मे बी वन कैन से z इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2i, z इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5i। आर गेटिंग? अब स्टूडेंट मुझे बताइए एग्जाम्पल के अंदर, मुझे सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर z1 मतलब कि पहला मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं z को अलग अलग बार यूज करना चाहता हूँ, z1 z2 z3, आई विल यूज दैट वे। सपोज यू हैव गिवन वन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 2i, ओके, 5 plus 2i, then here a का वैल्यू क्या हो गया, तो 5 जो मेरा रियल नंबर है, रियल पार्ट, और b का वैल्यू क्या हो गया 2। जो ऐसे मैं बोलूं तो वो i के साथ जो जुड़ा हुआ रियल पार्ट है ना, रियल, दैट रियल पार्ट, मगर वो है i के साथ, तो मैं बोलना चाहिए इमेजिनरी पार्ट। आर यू गेटिंग? So the coefficient of I mean to say I के मल्टीप्लीकेशन में जो रियल नंबर है that is going to be your imaginary part। I के साथ क्लियर कट इतना ध्यान रखना, I के साथ जो जुड़ा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसमें I नहीं है वो रियल है। जैसे A वो रियल है, और जैसे यहाँ B वो इमेजिनरी है, तो A क्या हो गया और B क्या हो गया। इसमें मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ इसको कंपेयर किया किसके साथ, a प्लस बी आई के साथ। तो आप कंपेयर करोगे तो 5 की जगह a है और यहाँ b की जगह पे 2 है, and by comparing I got this a and b value। Second example if I take, suppose z2 करके हमको दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर 9 माइनस 5i। तो स्टूडेंट मुझे बताइए इसमें a क्या है और b क्या है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, बाकी इसको आप कंपेयर करने बैठो विथ a प्लस बी आई, सो यू कैन नोटिस हियर द वैल्यू फॉर a इज 9 एंड वैल्यू फॉर b इज इक्वल्स टू -5। स्टूडेंट ध्यान रखना, अवर बेसिक फॉर्म इज a प्लस बी आई, तो आपको जो कंफ्यूजन होता है तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं, देख लो कि 9 माइनस 5i जो है आई कैन रिप्रेजेंट as 9 plus minus 5i। आर गेटिंग? बीच में मैं कैसे न कैसे करके प्लस लाके दिखाया हूं, माइनस का साइन ऑफ 5 को मैंने इंडिविजुअली शो किया है। सो व्हाट नाउ आई कैन से इट कैन बी कंपेरेबल विथ a प्लस बी आई, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है, वो है इधर प्लस का साइन, और उस तरह से ये प्लस का साइन जो है आ गया a प्लस बी आई के कॉन्टेक्स्ट से, आप कंपेयर करोगे, therefore a इज इक्वल्स टू 9 और b इज इक्वल्स टू -5। अरे गेटिंग स्टूडेंट्स? तो वो माइनस है तो उसको आप अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो इट इज ओके, बट इफ यू वांट टू राइट लाइक दिस एंड देन यू हैव टू कंपेयर, ये दैट ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स, suppose if I write as 5i। चलिए मुझे बताइए स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए। ए बी का वैल्यू मैं बाद में पूछूंगा आपसे, बट फर्स्ट यू टेल मी कैन इट बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट। तो पहले ही हमने दिखा दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन में, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। ओके, तो क्या ये a प्लस बी आई के फॉर्म में दिख रहा है क्या? क्योंकि सर आप बोलेंगे कि a प्लस बी आई में ये बी आई दिख रहा है, ये रहा बी आई खुद 5i, मगर उसके साथ जो a है रियल नंबर है, जो रियल पार्ट है वो नहीं दिख रहा है, मतलब इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, रियल पार्ट उसमें नहीं दिया है।
मगर आप इस डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इट इज ऑलवेज in the form of a plus bi, always in the form of a plus bi. Are you getting students? तो ये यहाँ पे a plus bi का फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो हाउ डू वी इंटरप्रेट कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होना है या नहीं होना है? तो लेट मी से in such situation, students, can you write this z3 that is 0 plus 5i? Yes or no? मैं लिख सकता हूं। तो ऑटोमेटिकली यहां जीरो का कोई मतलब तो है नहीं, मगर जीरो लिखने के कारण आई कैन कंपेयर विथ अवर बेसिक फॉर्म a plus bi. Are you getting? So now it can be said as this is complex number. Okay, ये एक बात कंफर्म हो गई। and if now it is comparable with a plus bi, so that the value of a is going to be 0 and b is going to be 5. ये स्टूडेंट एग्जांपल ध्यान से समझना है। If only imaginary number is given, then 2, it is a complex number because we can add 0 and we can represent it in the form of a plus bi, and therefore there is a complex number is properly formed in a plus bi, and hence a and b value can be also obtained. Students, मैं एग्जाम्पल कुछ और दे रहा हूं, दैट मीन्स आप उससे प्रॉपर आइडिया लीजिए कि हाउ वी आर मूविंग फर्दर विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, एंड आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना जरूरी है। कैन आई से ओनली आई हैव रिटन 5, कैन इट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर? स्टूडेंट्स, मैं वैरायटी एग्जांपल ले रहा हूं ताकि थोड़ा आपको भी सोचने का मौका मिलना चाहिए, एंड यू कैन ऑल्सो इंटरप्रेट प्रॉपरली। यहाँ तो स्टूडेंट यहाँ रियल पार्ट ही दिया है सिर्फ मैंने 5, बट दिस 5 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 0i। यू कैन, अभी ये 0i का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, मगर मैंने ऐड करके इसलिए लिखा ताकि वी कैन कंपेयर विद a प्लस बी आई, and hence here we can say that a value is 5 and b value is 0. So imaginary part 0 हो गया students, imaginary part b वो 0 हो गया। Are you getting? And this way we can also have this type of examples. Students, next example I am taking is, suppose if I write 0, suppose if I write 0, and in this situation only 0 written, can it be said as a complex number? First of all, क्योंकि सर आप सभी एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बना ही ले रहे हैं। देख लो आगे के थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल की बात करूं खास करके, तो वो शुरुआत से a प्लस बी आई के फॉर्म में दिख ही नहीं रहा था, फिर भी उसको हम ट्रीट करके लिया है इस तरह से कि उसको a प्लस बी आई के फॉर्म में हम लेके आए हैं। Similarly to that, if I write only 0 and then this 0 can be said as 0 plus 0i, and with that I can compare with a plus bi, which can be said as this is a complex number. So 0, only 0 is also a complex number. ये सब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आपको पूछ सकते हैं, and hence I can say a value is 0, b value is 0. Students, this is very important discussion I have considered, and I must say somewhere this example will give you proper guidance about this complex number. Student, one more thing, after finishing this many examples, I would like to have
one more discussion in front of you. Students, in the beginning, in the discussion of complex number, how we have generated the value of iota, that is we now generally call it as I also, but the basic उसका representation जो है I, उसको हम iota बोलना चाहिए, but in our regular representation we just say I also. But my important discussion was on this particular conclusion. Students, हमने यहाँ I का जो value माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 और उस पे से हमने आई स्क्वायर का वैल्यू -1 जो जनरेट किया है स्टूडेंट्स, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो मुझे इस पे से कुछ और वैल्यूज जो जनरेट करनी हो हायर ऑर्डर पावर के बेसिस पे, यहाँ तो आई का पावर 2 है ना, स्क्वायर मतलब आई का पावर 2 है, बट इफ आई वांट टू हैव सम मोर results, so since iota square is equals to -1 as under root -1 was iota, okay, तो ये जो मुझे कंक्लूजन मिला हुआ है, फ्रॉम दैट इफ आई वांट टू फाइंड iota cube, if I want to find iota cube, then what I can do, I can write iota cube as I into I square, and from that I know I square is -1, so I into -1 is finally going to be minus I. Are you getting, students? So this way you can treat this particular IQ. Now if I want to find I raised to 4, it is simple, as you can say you can do I square and I square is -1 and उसका भी square हो जाएगा, that is going to be +1, positive 1. Are getting what we are doing? Actually we are finding specific power value for I, so I raised to 4 हो गया ये. Next if I want to find I raised to 5, then what you can do, I can say I into I raised to 4, and similarly I into I raised to 4 I can write I square, and that way I into I square is -1 का square +1, so I into 1, and that is going to be finally I. तो कुछ इस तरह के कंक्लूजन आप इसके अंदर ले सकते हो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडाइसिस के रूल्स भी इसमें साथ में आपके क्लियर रहने जरूरी है, बिकॉज नाउ दिस इज द फर्दर लेवल, मतलब उसका जो हम बोलते हैं ना कि मीनिंग जो हमने समझ लिया है, नाउ फर्दर वी आर मेकिंग यूज ऑफ इट. जो मैंने ये आई का आपको ये इंट्रोडक्शन किया आपसे, इमेजिनरी नंबर हमने देखा कि क्या होता है, उस पे से हम ये आगे का कैलकुलेशन कैरी कर रहे हैं, एंड फ्रॉम दैट we'll see some in questions also some type of calculation and this particular conversion is required. तो ये जरूरी है आपको समझना. Let me take one more. Suppose if I want to find I raised to 19, हाँ अभी थोड़ा मैं ज्यादा वैल्यू ले रहा हूँ पावर में, so that you can think कि इसमें हम किस तरह से चेंजेस करके इसका आंसर लेके आ सकते हैं. Let me show this I raised to 19. So I raised to 19, I can say I into I raised to 18, isn't it? I raised to 1,
और i रेस टू 18 बेस सेम होता है, तो क्या होता है, बेस सेम होने के कारण पावर का एडिशन होता है. सो i रेस टू 1 into I raised to 18 will be I raised to 1 plus 18, and that will become I raised to 19 as it is given. So this I, as it is, this I raised to 18, I can say I square raised to 9. Powers, power always they are having relation of multiplication, as you know. So 9 into 2 will become 18. And finally, this I square you can make minus 1 raised to 9 and minus 1. See students, अब मैंने जो एग्जांपल लिया इसमें I माइनस 1 के पावर में 9 है, दैट 9 इज ऑड. कोई भी माइनस वैल्यू के पावर में ऑड नंबर है तो आंसर फाइनली माइनस में आएगा. So it is going to be I into minus 1 and it is finally going to be minus I. So student, what you can find कि ये जो हमारे पास इस तरह से कुछ नंबर्स आते हैं. Let's say one more example, I raised to, if I take 22, so I can say I raised to 2 whole raised to 11. As you know, I raised to 22, I raised to 2 whole raised to 11. Powers power multiply, 11 into 2 22 हो जाता है. What is I square? Minus 1. Minus 1 raised to 11. It's going to be again odd है. देखो 11 पावर में minus I minus 1 sorry. So ये हो गया I raised to 22. If I say I raised to 56, so again I can say I square whole raised to 56. किसके मल्टीपल में 2 के हिसाब से, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो 56 को. $28. Now I square is minus 1. Minus 1 raised to 28. अब देखो स्टूडेंट्स, पावर में 28 आया, दैट 28 is even number. 28 is even number, and therefore minus वैल्यू के पावर में जब इवन नंबर होता है, इट इज गोइंग टू बी प्लस 1 ओनली. सो आई मस्ट राइट प्लस 1 डायरेक्टली. तो स्टूडेंट, ये जो आपको कैलकुलेशन समझ में आता है, तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर इस तरह से आपको कन्वर्जन करना है, तो आप आराम से कर सकते हो. बट प्रायर टू दैट ये आपको रिलेशन मालूम हुआ है जो हमने थियोरी समझा है, then you can do it this way, and with that we can reach to some conclusion properly whatever the question they are giving. In that, if this use is there, then we can go properly. Now ये एक पार्ट जो हमारे आई स्क्वायर की वैल्यू से हमने ढूंढ के जो निकाला है, उसके हिसाब से हमने एक और टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए इसमें हमने देखा है कि जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने देखा. फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 5 प्लस 3i, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो यहां पे जो 5 जो है वो हमारा है रियल पार्ट, और ये जो 3 है, ओनली 3, which we call it as imaginary part. स्टूडेंट, इससे मुझे क्या बात समझानी है? आई एम repeating this point, but I wanted to have some representation of a real part and imaginary part. When we write real part of any complex number, we used to have some notation as RE. REZ, and what does it mean? Z, it is our complex number, and before that RE is represented, which says that this particular
RE is used for representing real number out of that whole complex number. पूरे complex number में दो पार्ट है, एक imaginary और एक real. पहला real part जो आ रहा है ना, तो real part denote करने के लिए REZ use करेंगे. और in some books you may get to see only written RZ. Whatever the real number will be there, that you have to mention. But this is a style and a method to have representation. Now for imaginary part, if you want to represent, I use specifically we use IM Z, and that is 3, or somebody may write like this IZ, that is also the same meaning. बट ये अलग अलग ढंग से लिखने का जो तरीका है, ये आपके सामने मैंने को दिखाना है कि फॉर एनी रियल नंबर, रियल पार्ट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट. दैट रियल पार्ट वी यूज टू राइट REZ or only RZ, and imaginary part we represent with IMZ or IZ. Are you getting, students? तो अर्लियर मैंने जो एग्जांपल लिए थे स्टूडेंट्स, उसमें मैंने खाली ए बी ढूंढने के लिए बोला था, आपको याद आ रहा है कि नहीं? ये देखो सब एग्जांपल्स, यू टू से जस्ट द वैल्यू फॉर ए बी एक्सेट्रा, और उसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट करके हमने नहीं लिखा है, लेकिन ए बी क्या है वो हमको मालूम है. ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है. आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पहले से ये मेंशन करके रखा है कि ए क्या है और बी क्या है. मगर कोई ए बी से नहीं बोलना चाहता तो ए नोटेशन क्या है, तो रियल पार्ट, बी नोटेशन क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट. और कोई डायरेक्टली मुझे पूछे कि सर मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डायरेक्टली बताओ, तो मैं इस तरह से भी नोटेशन लिख के बता सकता हूं. आर यू गेटिंग? सो दीज आर सम रिप्रेजेंटेशन point of view notations we are using, and that notations are very much important because जो भी हम यूज करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, वो बहुत अच्छे से हमारे को रिप्रेजेंट हो जाता है, एंड विच इज यूजफुल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो नोटेशन से ही हम लिखते हैं, तो अलग अलग स्टाइल से नोटेशन लिखा जाता है, और उसमें हम इस तरह से कुछ अल्फाबेट्स वगैरह का यूज करते हैं. नाउ students, next part we have to understand, next जो उसके अंदर से ही हमको जो concept connected है, that is give heading conjugate of a complex number. First of all, let me give the meaning about what do you understand by the conjugate. Conjugate क्या है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं. First of all, understand that. Take down. Suppose मैंने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा a प्लस बी आई, और मैंने ये लिखा a माइनस बी आई. तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हम बोलेंगे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. अब ये क्या लॉजिक से मैंने बात कर दी कि भाई ये दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट कैसे बनेंगे, और क्या लॉजिक से मैंने ये कॉन्जुगेट हो रहे हैं एक दूसरे से बोल दिया. ओके, फॉर फाइंडिंग conjugate of any complex number, change the sign of
imaginary number. Change the sign of imaginary number. Conjugate of a complex number is represented by z bar. z bar बोलेंगे इसको, इस z के ऊपर देखो एक मैंने लाइन कर दिया है. That is what is known as conjugate of the complex number. अब for example मुझे दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 10i और हमको बोला है उसका कॉन्जुगेट निकालो. Therefore conjugate of that complex number z, that is z bar, मगर हम उसको बोलना चाहिए conjugate of complex number, that will be 5 minus 10i. क्या करने के लिए मैंने बोला डेफिनेशन में, ऊपर आपको मैंने इंस्ट्रक्शन में क्या बताया हुआ है, just you have to change the sign of your imaginary number. Change the sign of imaginary number. That's only change you have to do. रियल नंबर जो है, रियल पार्ट जो है, उसका साइन एज इट इज रखना है. इसलिए देखो ना 5 का तो 5 रहा ना एज इट इज, बट व्हाट अबाउट दैट प्लस 10i, दैट बिकम माइनस 10i एंड देयरफॉर दिस बिकम्स कॉन्जुगेट. एंड मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में आपको स्पेसिफिकली बोल दिया था कि a प्लस बी आई और a माइनस बी आई, दे आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. अब समझ लो, if I take this z is equal to 5 minus 10i, then its conjugate will be 5 plus 10i. और इसीलिए तो मैंने बोलना है कि ये जो 5 plus 10i है और ये 5 minus 10i है, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं. आप 5 plus 10i का कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपको 5 minus 10i मिलेगा, और 5 minus 10i का कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपको 5 plus 10i मिलेगा. That is what I have written in the first line, that a plus bi and a minus bi are the conjugates of each other. Are you getting, students? And therefore now this particular conjugate concept will be clear to you. Till this much in this particular session we are going to conclude now. यहाँ तक जितना भी हमने सीखा है, please try to have some revision and please clear the concept properly. जो मैंने स्टार्टिंग से इमेजिनरी टर्म से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन जो किया है, प्लीज ट्राई टू हैव ओवरव्यू ऑन दैट. We will continue in the next lecture. Thank you, friends.